This lecture, third lecture for the chapter number one, that is the introduction to bookkeeping and accountancy. Now we are going to see the distinction between bookkeeping and accountancy. What are the differences? It is given point wise. Actually, I told you that you don't have essay type of questions in your examination, but you should know as a basic theory. So, what is the bookkeeping and what is accountancy and what is the difference in that? I told you earlier that bookkeeping is an art of recording the dealings इन सेट ऑफ बुक्स अकॉर्डिंग टू जे आर बॉटली बॉय, आपको याद होगा। और फिर मैंने आपको रॉबर्ट एंथनी का अकाउंटिंग का डेफिनेशन भी बताया था। पहले ये डेफिनेशन बताया था कोहलर का, अकाउंटेंसी रिफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थियरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। And in the words of Robert N. Anthony, okay, he defined as a nearly every business enterprise has an accounting system. It means collecting, summarizing, analyzing, and reporting in monetary terms, मतलब money terms, okay, information about business transactions. तो आप अब ये सब पढ़ने के बाद हमको ये मालूम होना चाहिए इसमें डिस्टिंक्शन क्या है। So first of all, meaning. The bookkeeping is mainly concerned with recording and classifying business transactions. It is recording the transactions and classifying means purchase का transaction अलग record करेंगे, sales का अलग record करेंगे, cash transactions अलग record करेंगे, credit transactions अलग record करेंगे. While accountancy, it is related with recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting the financial data. So actually the scope of the accountancy is broad. It is summarizing, analyzing and interpreting the financial data. Okay, means every accounting information is properly processed. Stage number 2 point है देखो, bookkeeping is the primary stage in accounting. It is the base for accounting. While accountancy, actually, apart from the primary stage, it includes secondary stage of analysis and interpretation. मतलब हम आगे जाके उसका एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस क्यों करना है? फ्रॉम द एंगल ऑफ गिविंग द इंटरप्रिटेशन। मीन्स इफ यू वांट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस by only one transaction or by only recording the transaction, you cannot understand that, okay. And accountancy is really helpful for that purpose. So this stage is very important. Objectives. The bookkeeping. The objective of bookkeeping is to keep the records of all financial transactions in proper and systematic manner. यहाँ पे क्या दिया है? The objective of accounting is to prepare financial statement and further communicate the information to relevant authorities. Okay. अभी आप सोचते होंगे कि सर ये तो हमारे सामने है, हम पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन देखो ये थियरी है और थियरी को हम लोगों को अच्छी तरह से सीरियसली देखना चाहिए। ओनली रीडिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड, ओके। और यहाँ से आगे जब जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आज के ही लेक्चर में, यू विल लर्न द बेसिक कंसेप्ट इन अकाउंट्स, मतलब क्या क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इन अकाउंट्स, ओके। इसलिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, शुरू का है लेकिन पढ़ना तो चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमको क्या पता चला? बुक कीपिंग, briefly what we can say, bookkeeping is objective of the bookkeeping is only to keep the record of transactions, while objective of accounting is to prepare financial statements like a profit and loss account and balance sheet, okay, and further to communicate to the relevant authorities. मतलब ओनर को बता दो कि भाई इतना प्रॉफिट हो गया, इतना लॉस हो गया, आज की तारीख में हमारा इतना ये फाइनेंशियल कंडीशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। For bookkeeping, actually junior staff is responsible for keeping the records. तो more skill is not required. So junior staff मतलब कोई भी आदमी नया जो अकाउंट्स जिसको मालूम है वो बुक कीपिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता है। यहाँ पे क्या है? सीनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बुक कीपिंग, फॉर कीपिंग द अकाउंट्स. Why? Because some skill is required, some experience is required for doing the further accounting. Outcomes. Bookkeeping basically results in journal and ledger.
मतलब हम लोग जर्नल लिखते हैं, आगे हम लोग देखने वाले हैं इन चैप्टर नंबर 3 जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, एंड चैप्टर नंबर 4 में आएगा उससे हम लोग लेजर अकाउंट कैसे बनाएंगे। ओके, उससे लेजर अकाउंट कैसे बनाएंगे वो हमको देखना है। और यहाँ पे क्या है, आउटकम क्या होता है, आउटकम का मतलब रिजल्ट क्या होता है। द रिजल्ट ऑफ अकाउंटेंसी इज अ प्रॉफिट एंड लॉस इन बैलेंस शीट। एज अर्लियर आई टोल्ड यू दैट वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस इन बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय बुक कीपिंग। मतलब देखो ये प्रोसेस है, पहले ट्रांजेक्शन होगा, बुक कीपिंग में रिकॉर्ड होगा और आगे जाके उसका अकाउंटिंग होगा, पीरियड। बुक कीपिंग गिव्स डे टू डे डिटेल्स, रोज का डिटेल्स हमको मिलता है। व्हाट आर माय परचेजेस टुडे, व्हाट आर माय सेल्स टुडे, व्हाट हाउ मेनी कैश ट्रांजेक्शंस द फर्म एंटर्ड इनटू, व्हाट इज द कैश रिसीट, व्हाट इज द कैश पेमेंट, लाइक दिस। Well, accountancy gives details of entire year, complete year. So we can get information from accountancy. Why I am using the word can get? Because you can get even the result for the next also. आपको next वाला भी result मिल सकता है. Okay. So don't worry about that. You can get the result for next one also. मतलब 3 months, 6 months भी मिल सकता है. Analysis. प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनालिसिस, उसको एनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अकाउंटेंट यूजेस ओके बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन टू एनालाइज इंटरप्रेट डेटा एंड देन कंपाइल्स इट इनटू रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में आएगा। देन देयर इज अ डिसीजन मेकिंग। ओके, डिसीजन मेकिंग आएगा, मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट एक्चुअली कैनॉट टेक डिसीजन okay based on the data provided by bookkeeping, but depending upon the data provided by accountants, management can definitely take a crucial business decisions. Okay, just wait मतलब क्या होता है, देखो इनको पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है या हमारा पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ रहा है, salaries we are paying more, rent we are paying more, and so our profit is down. Okay, so actually they can take a decision, management can take a decision depending upon that. Skill required for bookkeeping, as I told you, junior staff is working. देखो मैंने एरो से भी दिखाया, तो एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग। एनी ऑर्डिनरी अकाउंटेंट, मतलब जो फ्रेश ग्रेजुएट भी है वो भी लिख सकता है, बट फॉर अकाउंटिंग इट रिक्वायर्स एनालिटिकल स्किल, एक्सपीरियंस सब रिक्वायर्ड है। देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली फर्दर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। नाउ we are going further for the discussion of basic methods of accounting. Okay, जैसे मैंने अभी आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एक्सप्लेन किया, लेकिन ध्यान में रखना ये ज़रूरी है that many times actually some students are mixing up bookkeeping and this accountancy. I am telling you briefly that bookkeeping is a initial work और उसका लिमिट कहाँ तक है, जर्नल लेजर, बस खत्म। उसके आगे क्या है, उसके आगे है अकाउंटिंग। ओके, so actually you can remember in the words like this that bookkeeping is limited to the extent of ledger, journal and ledger, or accounting is having the further job of preparation of the reports on the basis of the bookkeeping data like a profit and loss account, balance sheet, and further analysis of the accounting information. चलो अभी आगे बढ़ते हैं। बेसिस ऑफ दैट इज द मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। देर आर मेनली 3 bases or methods of accounting in common usage, namely cash basis. कैश बेसिस का मतलब क्या होता है, डे टू डे। okay, some people or some actually businessmen are there, they are doing everything on the cash basis. मतलब कितना कैश आया, कितना गया, उतना ही रिकॉर्ड करो। You take the example of doctors.
डॉक्टर्स की यहाँ क्रेडिट चलता नहीं है। ओके, आपने कभी सुना है डॉक्टर्स को लोग पेशेंट ऐसा बोलते हैं, आपका जो कंसल्टेंसी फीस है वो 1 महीने के बाद देता हूँ। जैसे वो ग्रोसरी शॉप पे बोल सकता है कि अपने किराने का बिल में 1 महीने के बाद देता हूँ, डॉक्टर को कोई ऐसा नहीं बोलता। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कैश बेसिस में क्या दिया है, अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल कैश रिसीट्स एंड एक्चुअल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। इन दिस बेसिस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू मतलब इनकम यहाँ पे, व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज पेड। हम लोग कब मान के चलते हैं मेरा इनकम हो गया, जब मेरे हाथ में कैश आ गया। और एक्सपेंसेस हुआ, ये अब कब मानते हो, जब आप पेमेंट करते हो, एक्चुअल कैश में पेमेंट करते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, एनी इनकम रिसीव्ड, एनी एक्सपेंसेस पेड, सच मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज यूजुअली फॉलोड बाय प्रोफेशनल्स एज ए डॉक्टर्स। अभी अभी मैंने बोला आपको, डॉक्टर्स, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हाट, हॉस्पिटल्स, then societies, the social clubs, cricket club, football club, okay. So actually then colleges, schools, आपके schools का होता है, colleges का होता है, for that we are maintaining the account on the cash basis. Second is the accrual or mercantile basis. Under accrual basis of accounting, okay, I am telling about this, मतलब मैं पहले आपको बताता हूँ accrual का मतलब क्या होता है। Here both cash as well as credit transactions are recorded. ओके, मान के चलो आप बिजनेस कर रहे हो और आपने कुछ सामान कैश में बेचा और कुछ सामान अपने क्रेडिट के ऊपर बेचा है, लेकिन बेचा तो दोनों भी है ना। ओके, बोथ द कमोडिटीज आर सोल्ड, वन इज सोल्ड फॉर कैश एंड वन इज सोल्ड ऑन क्रेडिट। एक्चुअली हियर बोथ द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, कैश एज वेल एज क्रेडिट। जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है उसमें आपको अभी नहीं पैसा मिलता, लेकिन आपको पेमेंट का प्रॉमिस मिलता है, दैट इन फ्यूचर यू विल गेट द मनी। फ्यूचर मतलब आफ्टर 8 days, 10 days, 1 month, like this. Now what is given in the accrual, under accrual basis of accounting, the revenue whether received or not, मतलब कैश में मिला है नहीं मिला है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, but has been earned or accrued during the year. earn मतलब आपने कमाया तो है, इसका whenever you are selling on credit basis you are creating the right to demand the money. For example, you are purchasing some commodities on credit basis from some shop owner, तो उसका हक बनता है आपको पैसा मांगने का, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। So here it is working in this way, and it is becoming the income for that particular shop owner. During the accounting period and expenses incurred whether paid or not are to be recorded. So accrual का मतलब क्या होता है, record the income and expenses, okay, on cash basis also, credit basis also, आपको सब कुछ रिकॉर्ड करना है। ओके, यहाँ पे ऐसा सोचना नहीं है कि मैंने कैश के ऊपर कुछ किया नहीं किया। इन अदर वर्ड्स, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड और accrued और एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दीज आर incurred. एनी इनकम earned whether received or not, एनी एक्सपेंसेस incurred whether paid or not. एक्सपेंसेस के बारे में भी ऐसा होता है ना कि अभी कुछ एक्सपेंसेस में हमने कुछ पेमेंट कर दिया और हमने सामने वाले को बोल दिया की भाई आगे का पेमेंट बाद में करूँगा, वो भी चलेगा। म्हणजे असं यातलं काही पण चालू शकेल। सो आपको यहाँ पे आपको क्या समझा, यू आर सपोज टू रिकॉर्ड ऑल ट्रान्झॅक्शन्स। इथे तुम्हाला सगळे ट्रान्झॅक्शन लिहायचे, कॅश ट्रान्झॅक्शन ॲज वेल ॲज क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन असं लिहायचं असतं। थर्ड इज अ मिक्स और हाइब्रिड बेसिस. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस and accrual basis of accounting. Under mixed basis of accounting, both cash basis and accrual basis, मैं credit basis नहीं बोल रहा हूँ, कैश और accrual दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। Revenues and the assets are generally recorded on cash basis.
वेयर एज एक्सपेंसेस आर जनरली टेकन ऑन एक्रूअल बेसिस। मतलब आप जो रेवेन्यू है, इनकम है, और आपका जो एसेट्स है उसका रिकॉर्डिंग कैश बेसिस के ऊपर करोगे, लेकिन एक्सपेंसेस का रिकॉर्डिंग आप एक्रूअल बेसिस के ऊपर करोगे, मतलब कैश एंड क्रेडिट बोथ रिकॉर्ड करोगे। रेवेन्यू के लिए आप कैश बेसिस यूज़ करोगे, लेकिन ये सिस्टम है, this actually is not allowed in India. The law in India prohibits the use of this method. It is not allowed. In India, what is allowed is accrual or mercantile basis. Rather, in every country, accrual or mercantile basis is mostly acceptable. Okay. Now we want to see the qualitative characteristics of accounting information. Accounting means a numerical qualitative presentation of a business transactions of financial nature. While recording accounting information in the books of accounts, we must observe following qualitative characteristics of accounting. क्या क्या है characteristic features? Number one is the reliability of accounting information. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल होना चाहिए। ओके, इट मस्ट बी ट्रस्टवर्दी। ओके, तो एक एक करके ये पॉइंट जो है हम लोग नीचे दिया है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे चार्ट दिया है, नीचे देखो। रिलायबिलिटी डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द टू प्राइमरी क्वालिटीज रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। Reliable information is required to form judgments about earning potential and financial position of the business firm. Reliability differs from item to item. मतलब हर किसी आइटम जो जो आपके इनकम के, रेवेन्यू के आइटम्स है, एक्सपेंसेस के आइटम्स है, तो आइटम टू आइटम reliability is different. Some items of information presented in an annual report may be more reliable than others. For example, information regarding plant and machinery may be less reliable than certain information about current assets because differences in uncertainty of the realization. इसका मतलब क्या होता है? देखो, मैं आपको एक अलग एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है जिसका वैल्यू है 10 लाख रुपए का। क्या वो सही है? आपने लिया था तब 10 लाख का था, आज की तारीख में उसका वैल्यू क्या है? या आपने मोटर कार लिया था, जब लिया था आपने लिया था 8 लाख रुपए में, अब उसका वैल्यू कितना है? क्या आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है उसके ऊपर? ओके, सो इट इज लेस रिलायबल. But whenever you are talking about cash in hand, that is called as the current asset, cash in hand, then your stock of goods, these are called as the current assets, which are changing every day. कैश देखो ना, रोज चेंज होती है ना। बिजनेस में सुबह अगर 50,000 आपके काउंटर में है, तो शाम को शायद 1 लाख रुपए हो सकता है, शायद 10,000 रुपये हो सकता है। So the information about the current asset is more reliable. Okay, there is no uncertainty about the realization. मतलब हमको तुरंत समझ में आता है, और about stock we can realize the stock immediately like this. Number 2, relevance of accounting information. Relevant accounting information must be capable of making difference in decision by helping users to form predictions about outcomes of past, present and future events, or to confirm or correct explanations. What do you mean by this? Actually, the information must be relevant, which is really helpful for everybody, for the users of accounting information. Okay, and they can make a proper predictions about the past, then present and future. But depending upon that, actually the predictions are possible. मतलब हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अंदाज़ा कैसे आप लगाओगे? जब आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होगा तो ही लगा पाओगे। The accounting information related by the books of accounts and financial report must be relevant. Accounting information should not include unnecessary and irrelevant information. जो information कुछ काम का नहीं है,
इररिलेवेंट है, उसकी आपको रिकॉर्ड रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. All the information said to be relevant which would have changed the outcomes of business if disclosed. That is, all useful and related information must find a place in the books of accounts, and the information must have timelessness. Okay. डेडिकेटिव एंड फीडबैक वैल्यू, मतलब इंफॉर्मेशन आपका जो है वो टाइमलेसनेस होना चाहिए, डेडिकेटिव होना चाहिए और फीडबैक वैल्यू उसमें होना ज़रूरी है. जैसे आपने अभी डिक्लेयर किया कि मेरा नेट प्रॉफिट है, माय नेट प्रॉफिट इज समथिंग अराउंड 60 लाख रुपीज़. ओके, then by showing all the information relevant to profit calculation, net profit calculation, okay, it must be a trustworthy and relevant. आपने कैसे कैलकुलेट किया, आपका सेल्स कितना है, आपका परचेज कितना है, आपका बाकी इनकम कितना है. बाकी इनकम भी होता है ना अपार्ट फ्रॉम सेल्स, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, लाइक दिस. और आपका एक्सपेंसेस कितना है. सो कंसिडर, और आपने कुछ प्रोविजन भी किया होगा, तो ये सब कंसिडर करके आज की तारीख में आपने जो प्रॉफिट दिखाया है क्या वो रेलेवेंट है. ओके, और ये प्रॉफिट आपने आज दिखाया है तो ये कल भी उतना ही रहना चाहिए, परसों भी उतना ही रहना चाहिए. देयर इज अ टाइमलेसनेस. एंड डेडिकेटिव, मतलब डेडिकेटिव एक्चुअली द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू यू दैट मस्ट बी डेडिकेटिव एंड फीडबैक वैल्यू. उसके ऊपर कुछ ना कुछ फीडबैक हम लोग दे सकते हैं. जो भी देखने वाला है वो अच्छी तरह से फीडबैक भी दे पाएगा. नंबर 3 इज अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. Understandability is the quality of information that enables users to perceive its significance. मतलब जब भी कोई यूज़र देखेगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो उसको तुरंत समझ में आना चाहिए. ओके, एट अ ग्लांस यू नो कि व्हाट इज़ माय प्रॉफिट और लॉस एंड व्हाट इज़ माय फाइनेंशियल पोजीशन टुडे. ओके, द बेनिफिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी इंक्रीज बाय मेकिंग इट मोर अंडरस्टैंडेबल. मतलब अंडरस्टैंडिंग में ईजी होना चाहिए, ऐसा कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं होना चाहिए. एंड हेंस यूजफुल टू अ वाइडर सर्कल ऑफ यूजर्स. Understandable financial information, accounting information presents data that can be understood by users of the information and is expressed in a form and with the terminology adapted to the user's range of understanding. Okay, for example, आपको बैंक लोन लेना है, you want to take a bank loan, then your accounts which are maintained by you must be understandable. बस सामने वाले को देखते ही पता चलना चाहिए. ओके, उस वो क्या ही इज हैविंग हिज ओन पैरामीटर्स. ओके, उसके मन में भी एक कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि अगर मुझे इसको लोन देना है तो मुझे इसका रीपेमेंट कैपेसिटी चेक करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वन पर्सन ही वांट अ लोन ऑफ 50 lakhs फ्रॉम द बैंक एंड व्हेन ही इज अर्निंग ओनली 1 lakh रुपीज, ओके, पर एनम, पूरे साल का, तो बैंक कैन नॉट गिव द लोन ऑफ 50 lakhs. Similarly, any businessman is doing the profit or making the profit of say 50 lakhs and demanding the loan from bank of 5 crores, bank may or may not give the loan. Okay, because bank is understanding, looking at the aspect that whether it is that person is having repayment capacity or not. If there is no repayment capacity, it is not possible. But to understand this, accounting information must be very simple, okay, proper, and all the accounting records are maintained as per law. Number 4, comparability of the accounting information. In making decision, the decision maker will make comparisons, okay, among alternatives, which is facilitated by financial information. Comparability implies, okay, to have like things reported in similar fashion and unlike things reported differently. So actually जो भी आपका information है, accounting information, that must be comparable either with last year or with comparable with the similar firm, similar other firm. दूसरा जो फर्म है, आपका फर्म
छोड़ के दूसरा जो फर्म है उसका और आपका अकाउंटिंग आपको कंपेयर करने को आना चाहिए. Information, if comparable, will assist the decision maker to determine relative financial strengths and weaknesses and prospects for the future between two or more firms or between periods in a single firm. मतलब लास्ट ईयर में क्या था, करंट ईयर में क्या होने वाला है, यू कैन मेक अ प्रॉपर प्रोडिक्शन ऑन दैट बेसिस. और मेरे फर्म का क्या हो रहा है, दूसरे का फर्म का क्या हो रहा है, ओके, वो भी वही बिजनेस कर रहा है. So on the basis of that, comparability is required. So my dear friends, we discussed up to this time. Okay, यहाँ तक हमने जो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा आपको मैं बताता हूँ. दैट इज़ अ बुक कीपिंग. ओके, जो मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया. उसके बाद में मैंने अकाउंटेंसी एक्सप्लेन किया. अकाउंटेंसी मीन्स व्हाट. And then we also learn the distinction between bookkeeping and accountancy. And now उसके बाद मैंने ये जो फीचर्स है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये भी मैंने आपको बता दिया. अब तक का जो इंफॉर्मेशन था उसमें याद रखने लायक क्या है, ये आपको मैं बताने वाला हूँ. चलो, ओके. Number 1, the definition of bookkeeping given by J.R. Botley and R.N. Carter. Okay. Number 2, the definition of accounting which is given by this accountancy का definition जो दिया ना आपको by Kohler and Robert Anthony. और आपको क्या ध्यान में रखना ज़रूरी था यहाँ पे, ओके, इस चैप्टर में पहले से जो आए, that who developed this double entry system, Luca di Borgo Paisoli in 1494. He was an Italian merchant. Okay. और हमारे इंडिया में किसने, मतलब एवोल्यूशन में हमने देखा कि किसने ये सब चालू किया, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑल दैट रिकॉर्ड करना. ओके, स्टार्टेड बाय, ओके, हमने देखा था वो, दैट इज कौटिल्या अर्थशास्त्र. वो इकोनॉमिक्स में भी है और यहाँ पे भी है. इन द एवोल्यूशन वी स्टडीड दैट, एंड एट दैट टाइम इट वाज कॉल्ड एज अ देशी नामा. दैट इज अ एंशिएंट मेथड ऑफ अकाउंटिंग. बाकी आपको क्या ध्यान में रखना था ये मैं बताता हूँ आपको. ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में 3 मेथड्स क्या, इतना ही ध्यान में रखो. कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस. उसका एक्सप्लेनेशन याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये ब्रीफली बोलना चाहिए. कैश बेसिस क्या होता है, यू आर रिकॉर्डिंग ओनली एक्चुअल रिसिट्स एंड एक्चुअल पेमेंट्स. एक्रूअल में क्या होता है, यू आर रिकॉर्डिंग एक्चुअली द कैश एज वेल एज क्रेडिट. और मिक्स में क्या होता है, यू आर रिकॉर्डिंग रेवेन्यूज ऑन कैश बेसिस बट यू आर रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस ऑन एक्रूअल बेसिस. ये समझ में आना चाहिए. और ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इसमें आपको ये 4 पॉइंट्स याद में रखने हैं. उसका एक्सप्लेनेशन आपने सुना तो है, ओके, समझा भी है, लेकिन ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है. मैंने वापस ये सब आपको क्यों बताया, क्योंकि इसके आगे का जो डिस्कशन है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. And you must have the complete concentration. This is called as the basic accounting terminologies. I'll be giving the explanation one by one. Okay. अभी जितना कवर होगा उतना हम लोग आज करेंगे. In order to have better understanding of accounting, it is necessary to know meanings of certain basic terms used in accounting. Accounting is a versatile system which serves a large number of purposes in the modern business world. Hence, following terminologies need to be understood. मतलब ये टर्मिनोलॉजी यहाँ से आगे आपको ये सब कुछ अच्छी तरह से समझना है, ध्यान में आना चाहिए. जैसे ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन मीन्स डीलिंग बिटवीन 2 or more persons. The types of transactions are given to you: monetary transactions and non-monetary transactions. Okay, monetary का देखते हैं पहले, cash transaction. So cash transaction means what? It is exchange of the goods
rather you can say commodities, exchange of the commodities against the cash. So whenever you are purchasing the pen, आपने पेन परचेज किया, you pay rupees 50 and you are getting the pen. Okay, like that. This is a cash transaction. So it is exchange against the cash, purchasing against the cash or selling against the cash. Credit transaction में क्या होता है? You are exchanging the commodities against the promise of the payment in future. You are not getting the money immediately, but you are getting the promise of the payment in future. That is called as the credit transactions. And non-monetary transactions में क्या आता है? It is called as a barter exchange. भाई ये तो पहले मतलब बहुत पुरानी सिस्टम हो गई. ओके, अभी इतना कुछ चलता नहीं है. ओके, व्हेन देयर वाज नो मनी, money was not available in the market, or rather you can say there was no concept of money and the economy was very small, village economy. Okay, so people were doing transactions in this way that actually somebody says I have a rice but I want a wheat. Okay, तो सामने वाला बोलेगा मेरे पास वीट है, मुझे राइस चाहिए, तो वो आपस में एक्सचेंज करेंगे. ओके, दे कैन एक्सचेंज इन दिस वे 2 kg राइस अगेंस्ट दैट 3 kg वीट. इस तरह से कुछ ना कुछ उनका डिसाइड होता रहेगा. सो दैट इज ओनली कॉल्ड एज अ बार्टर एक्सचेंज. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज. नो कैश, no promise of payment in future, nothing like that. So there was no chance of credit transaction also, and cash तो था ही नहीं, तो cash transaction में नहीं था. So this is called as a barter transaction. Transaction means what? Exchange of goods and services between two persons or parties for money or money's worth. Okay, is known as transactions. मैंने आपको एक सिंपल डेफिनेशन बताया, डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन्स. Okay, or two or more parties, and they are doing the exchange of goods and services, okay, against money or money's worth. So this is called as a transaction. Monetary transactions are divided as a cash transaction, credit transaction, जो अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन उसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है. लेकिन ज़रा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे. कैश ट्रांजेक्शन में देखो, अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली इज नोन एज अ कैश ट्रांजेक्शन. परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश 15,000. आपने गुड्स ले लिया, बदले में कैश दे दिया. गुड्स का मतलब क्या होता है ये भी आगे आने वाला है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ. गुड्स मीन्स कमोडिटीज विथ विच यू आर डीलिंग इज कॉल्ड एज गुड्स. जिसका आप बिजनेस करते हो, that particular commodity is called as the goods. For example, for a grocery shop owner, okay, wheat, then rice, sugar, jowar, bajra, edible oils, all are goods. For stationery shop owner, what are the goods? Papers, carbon papers, pen, pencil, notebooks, textbook, all are the goods of stationery shop owner. और जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप ओनर है उसका गुड्स क्या है? टीवी, मोबाइल, ओके, देन वॉशिंग मशीन्स, एसी, फैंस एंड ऑल दैट. सो एक्चुअली दिस इज द कंसेप्ट ऑफ गुड्स. वो आगे भी आएगा. सो परचेस, वेन एवर यू आर परचेसिंग गुड्स फॉर कैश, इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन. और यू आर डूइंग द पेमेंट ऑफ सैलरी आपने पेमेंट किया आपके एम्प्लॉय को, इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन. Number 2, credit transactions. A credit transaction is one in which cash is not paid or received immediately at the time of transaction, but it is paid or received at later date. At later date, actually, it is paid or received. That means we are presently getting only promise of payment. Now here example, goods sold on credit to Mr. Aman. नाम होना चाहिए. अगर आपने क्रेडिट के ऊपर माल बेचा है तो किसी ना किसी को तो बेचा होगा, उसका नाम लिखना ज़रूरी है. इन कैश ट्रांजेक्शन यू नीड नॉट टू राइट अ नेम ऑफ द पर्सन. फॉर एग्जांपल, यू परचेज द गुड्स फॉर कैश, तो नाम क्यों चाहिए हमको? नाम की कोई ज़रूरत नहीं है. पैसा दिया, माल लिया, फिनिश.
लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आपको ये सब लिखना ही पड़ेगा। ओके, नाम लिखना पड़ेगा। ओके, देखो अगर आपने कैश के ऊपर कुछ परचेस किया तो दुकानदार कुछ बोलेगा नहीं, ये माल ले लो, पैसा दे दो, फिनिश। लेकिन आपने बोला कि मैं अभी चाचा मुझे अभी अंकल मुझे आज ये बुक चाहिए, ये पेन चाहिए, नोटबुक चाहिए, इसका कितना पैसा बनता है, 500 रुपये। ठीक है, मेरे पापा आपको ये कल पेमेंट कर देंगे। फिर वो लिख के रखेगा आपका नाम। ओके, उसके बाद पूरा कुंडली रहेगा आपका। ओके, नाम रहेगा, आधार कार्ड रहेगा, पैन कार्ड रहेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द एविडेंस। क्योंकि लोग क्रेडिट तो इजीली किसी को देते नहीं है, और दिया तो उसकी पूरी कुंडली हमारे पास होनी ही चाहिए। या तो सेकंड एग्जांपल देखो, सोल्ड मशीनरी टू अमर सिंह ऑन क्रेडिट। ये अमर सिंह को हमने मशीनरी क्रेडिट के ऊपर सेल किया है, तो अमर सिंह का पूरा पूरा नाम वाम सब लिखेंगे, खानदान का भी नाम लिखेंगे, क्योंकि पैसा आना बाकी है ना भाई। Non-monetary transactions, as I told you, which does not involve an exchange of money or money's worth directly or indirectly, are called as a non-monetary transactions. An exchange of one thing against another thing is called as a barter transaction. जैसे अभी भी मैंने बोला था 2 kg rice and exchange with 3 kg of wheat. Now the next point is given to you, entry. Entry का मतलब क्या होता है? आपने तो एंट्री ऐसा सुना होगा ना, एंट्री। एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज ए जर्नल एंट्री, लेजर एंट्री, ऐसा बोलते हैं। तो एंट्री का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द प्रॉपर फॉर्म और मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एज एन एंट्री। बट ट्रांजैक्शन होता है, वो कैश ट्रांजैक्शन हो सकता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सकता है, वो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया। So recording the transaction in the books of accounts in the proper form is called as a entry. You can also say journal entry or ledger entry. ये और नहीं है, पहले जर्नल एंट्री होता है, बाद में लेजर एंट्री होता है। नरेशन, a brief explanation of the business transaction for which an entry is passed is called as a narration. It is always given in the bracket below journal entry and it usually starts with the word being or for. मैं आपको ये समझाता हूँ, चलो। नरेशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली इट इज स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन विच वी आर राइटिंग इन द ब्रैकेट बिलो एंट्री। एंट्री होता है, उसके नीचे ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ता है। जैसे ये ऊपर का देखो, ट्रांजेक्शन सोल्ड मशीनरी टू अमरीश ऑन क्रेडिट 20,000। इसका डायरेक्शन आपको पहले एंट्री पास करोगे। एंट्री कैसे पास करते हैं वो सेकंड चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं, लेकिन इसका नरेशन कैसे लिखना है? ओके, बीइंग मशीनरी सोल्ड टू अमर सिंह, बीइंग मशीनरी सोल्ड टू अमर सिंह, फिनिश। देन गुड्स, अभी अभी मैंने बात की थी, टर्म गुड्स रिफर्स टू मर्केंटाइज और कमोडिटीज। मर्केंटाइज मतलब वस्तु, सामान जो है वो, कमोडिटीज आर्टिकल्स और थिंग्स इन विच ट्रेडर ट्रेड्स, वेयर यू आर डूइंग द बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द गुड्स। दे आर परचेज और मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेल एंड टू अर्न प्रॉफिट। ओके, चलो आपको मैं ये थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। ओके, गुड्स का मतलब होता है माल। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप ओनर है, उसने क्या किया? ही परचेज 10 टेलीविजन सेट, ही परचेज 10 वॉशिंग मशीन्स, ही परचेज 20 AC यूनिट्स। ओके, बट वाई ही परचेज? बिकॉज ही वॉन्ट टू सेल। उसने परचेज किया है फॉर सेलिंग पर्पज, ओके, टू अर्न प्रॉफिट। ट्रेडिंग के बारे में मैंने बोला था ना आपको एक पहले लेक्चर में। ट्रेडिंग मीन्स व्हाट? परचेजिंग फॉर रीसेलिंग। ओके, लेकिन क्या हम एज अ कस्टमर ऐसा बोलते हैं कि भाई मेरा ये गुड्स है? गुड्स का मतलब हिंदी में होता है या मराठी में भी होता है माल। अब मान के चलो आपने टीवी ले लिया और घर पे जाने के बाद क्या कभी आप बोलते हो मैंने माल खरीदा?
नो, you say that you purchase only TV, or you take the example of the motor car. आपके लिए वो मोटर कार है, लेकिन जो सेल करता है उसके लिए वो क्या है? माल है, मतलब गुड्स है. ओके, now here some examples are given to you. Merchandise are goods for chemist. Medicines are goods for chemist. Sometimes actually reading में थोड़ा गड़बड़ होता है, समझ के लो प्लीज. Sometimes only, sorry for that. Vegetables are goods for vegetable vendor. And then parts like tires, engine, gearbox, cables are produced by vehicle manufacturer like Bajaj Auto, Hero Motors. So all these together are called as goods. Then there is a next part called as the capital. Very important, very important. अगर आपको बिजनेस चालू करना है तो आप पहले सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? सबसे पहले आप चेक करोगे क्या मेरे पास बिझनेस में डालने के लिए पैसा है? माझ्याकडे बिझनेस चालू करायला भांडवल आहे का? ओके, क्या मेरे पास बिजनेस में डालने के लिए पैसा है? एक्चुअली द मनी और एनी एसेट यू आर ब्रिंगिंग इन द बिजनेस, ओके, इज कॉल्ड एज अ कैपिटल. The total amount invested into business by the owner is called as capital. Excess of assets over liabilities is also called as a capital. The equation for this is equal capital is equal to assets minus liabilities. लेकिन ये बात की बात है, जब आप बिजनेस शुरू करते हो, चालू करते हो, तो जो बिजनेस में पैसा लाते हो या कोई एसेट लाते हो, लाइक मशीनरी, फर्नीचर, आपके घर में पड़ा है, मशीनरी पड़ा है, फर्नीचर पड़ा है, स्टॉक ऑफ गुड्स भी पड़ा है, बस आपको बिजनेस चालू करना है. ओके, देन दैट इज कॉल्ड एज योर इनिशियल कैपिटल. इनिशियल मतलब शुरू का भांडवल. और ये क्या है? कैपिटल. बाद में जब आप कैलकुलेट करते हो, मतलब आफ्टर सम टाइम्स, सम 1 year or after say 6 months, 1 year, 2 years, if you want to calculate your capital, then this is the formula for calculation of capital. Equation is capital is equal to assets minus liabilities. And very important, capital is a liability of the business as this amount is payable by business enterprise to the owner at the time of closure of the business. ये थोड़ा सा आपको अटपटा लगने वाला है. देखो, मान के चलो आपने बिजनेस चालू किया, ओके, और बिजनेस चालू किया आपने, तो बिजनेस में आपने पैसा डाला, ओके, आपका ही बिजनेस है. फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस का नाम है ए ट्रेडर्स, ऐसा नाम रखा है आपने, ए ट्रेडर्स, ओके. ये आपका बिजनेस है, आपने वहाँ पे पैसा डाल दिया, कैपिटल डाल दिया, आपका ही कैपिटल है, आपका ही बिजनेस है, फिर भी वो आपके बिजनेस का क्या है? लायबिलिटी है. ऐसा क्यों? बिकॉज वेन एवर एक्चुअली यू आर स्टार्टिंग विद द बिजनेस, यू आर गिविंग द मनी टू बिजनेस, एंड नाउ वेन एवर द बिजनेस इज गेटिंग क्लोज, अगर बिजनेस बंद हो गया तो वहां से आप पैसा निकालते हो वापिस. ओके, देर इज अ स्पेशल concept called as a business entity concept. मतलब business is different and businessman is different. Business is a firm, ये फर्म अलग है और बिजनेस करने वाला अलग है. बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन है, वो अलग है, और बिजनेस अलग है. बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेस में पैसा डालता है, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि आज नहीं तो कल उसको पैसा वापस करना है, बिजनेस बंद हो गया तो. So in this way, it is necessary to understand that the capital is a liability. I can further add here, capital is a long-term liability. According to which concept? Business entity concept. We are going to actually study the concept very properly. अब मैंने कैपिटल एक्सप्लेन किया तो मुझे ड्राइंग्स तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा. ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ये वो वाला ड्राइंग नहीं है जो बनाते ना ड्राइंग, वो नहीं है.
फिर ये क्या है? The amount of a cash or value of goods or any asset etc. withdrawn from the business by the owner for personal use is called as a drawings. उल्टा हो गया ना? देखो, कैपिटल का मतलब क्या होता है? बिजनेसमैन इज पुटिंग द मनी इनटू बिजनेस व्हेनेवर इज स्टार्टिंग विद द बिजनेस और एनी टाइम, बीच बीच में भी हम लोग कैपिटल बढ़ा सकते हैं। और ड्राइंग का मतलब उल्टा होता है। क्या होता है यहाँ पे? यू आर टेकिंग द मनी, दैट इज द कैश और गुड्स और एनी एसेट फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस, इट इज टेकन अवे एट होम फॉर पर्सनल यूज। एग्जाम्पल क्या है इसके? देखो, अ प्रोप्राइटर पेज, okay, like this, pays college fees of his son or pays for his medical expenses, mobile bills etc. from the business, so that is called as a drawings. इसको क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। ओके, और अभी आपको मैं आगे जो बताने वाला हूँ यहीं पे वो सुनो। कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, देन ड्राइंग्स इज अ एसेट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का प्रॉपर्टी है, बिजनेस का एसेट है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा निकाला है जो बिजनेसमैन को वापस बिजनेस में डालना पड़ेगा। ओके, आप आपके पेरेंट्स के साथ कभी बात करो, अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं तो उनके साथ बात करो। ओके, वो कभी कभी वो भी आपको बताएंगे कि मैं बिजनेस से पैसा नहीं निकालने वाला हूँ, आई एम नॉट टेकिंग अवे द मनी फ्रॉम माई बिजनेस। मतलब बड़ा बिजनेस बड़ा नहीं करने वाला हूँ, निकालने वाला। हाँ, छोटा मोटा जो लगेगा, जो घर खर्च के लिए चाहिए, डोमेस्टिक यूज़, पर्सनल यूज़, ओके, प्राइवेट यूज़, ओके, जो छोटा है वो मैं निकालूंगा। और सो ड्राइंग्स इज अ एसेट ऑफ बिजनेस and capital is a long term liability of the business, and the concept applicable here, that concept is called as a business entity concept। ओके, तो यहाँ पे अभी ये लेक्चर मैं रोक देता हूँ, क्योंकि लेक्चर का कभी शुरू में लेक्चर का साइज़ थोड़ा बड़ा होने वाला है। 30 मिनट्स के आगे नहीं जाना चाहिए, मुझे भी मालूम है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि थियरी अकाउंट्स का बेसिक आपको समझना ही चाहिए। आपको मेरी विनती है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू दैट यू प्लीज़ रीड फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, मतलब पहले पेज से लेके 7 नंबर पेज तक आप अच्छी तरह से पढ़ो। जैसे ही ये चैप्टर मैं ख़त्म करूँगा, आपको एक यूनिट टेस्ट देने वाला हूँ। आई विल बी गिविंग द यूनिट टेस्ट। ओके फ्रेंड्स, सो लेट अस स्टॉप हियर।